Welcome boys. Now in this module we will take velocity time graph and the area of the velocity time graph. So we are taking first graph under the heading velocity time graph. Now first graph is like this. This is velocity v. This is time t. Now you must be thinking that why I have skipped speed time graph, because speed time graph and velocity time graph in the same direction are same in the nature, but when the direction of motion changes, then only there is difference between speed time graph and velocity time graph. We will discuss few situations in this module only and then we will move ahead. Now this is very clear. This is velocity. You know that this velocity is v1 and it is constant with time. So if you take two time, this is t1 and this is t2, this is point A, this is point B, then you can say that if you want to find out that is change in velocity, then it is equal to 0. So delta V is equal to 0 and change in time is equal to T2 minus T1, that is delta T. Okay, so if you find the ratio, that is delta V upon delta T, which is equal to 0 by delta T, which is equal to 0, and you know that change in velocity upon change in time gives acceleration of the body. So acceleration A is equal to 0. So in this case, if velocity time graph is parallel to time axis, then you can see that change in velocity is 0. It means that velocity is constant throughout the time and change in velocity is 0, but change in time is finite. So the ratio of change in velocity to the change in time is 0. It means that body is moving with constant acceleration or zero acceleration. 0 is also a constant value, but zero acceleration means the velocity is not changing. Okay. Now second graph we can take. If the velocity time graph, this Vt graph, is like this, then what does it mean? If we take two different times, this is t1 and this is t2, and this velocity is v2 and this velocity is v1, and you just make a triangle here, this A, B, C. Let this angle is theta. Now what happens? Change in velocity is what? Here change in velocity is equal to v2 minus v1, and here it is not equal to 0, that is v2 minus v1 is equal to delta v. And similarly, the change in time is t2 minus t1, that is delta t. We can write here as delta v by delta t, and this quantity gives acceleration A. अब ये acceleration constant होगा या नहीं होगा? Acceleration A ये constant होगा. रीजन जो वहां हमने एक्सप्लेन किया था वही रीजन यहाँ भी है कि इस पार्ट यानी पार्ट AC ऑफ द ग्राफ जिसकी हमने स्लोप निकाली है वो कांस्टेंट है, और ये एक स्ट्रेट लाइन है पासिंग फ्रॉम द ओरिजिन. देन इट मींस दैट slope of the whole line is constant and the velocity of the body is increasing at constant rate. It means body is moving
मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। जीरो एक्सेलरेशन नहीं होगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा। क्यों यूनिफॉर्म होगा? क्योंकि इसकी स्लोप कांस्टेंट। अब जो मैंने तरीका आपको बताया था कि इसकी स्लोप क्या देगा, हमने लिखा ये परपेंडिकुलर हुआ, ये बेस हुआ, tan theta is equal to perpendicular upon base. This perpendicular represents change in velocity and this base represents change in time. So change in velocity upon change in time is acceleration of the body. Clear? Now come to next graph. This is third graph. We can take third graph like this. This is velocity, this is time, this graph is like this. Again, we are moving in the similar manner. तो अगर आप यहाँ एक मान लीजिए 1 सेकेंड का टाइम इंटरवल लेते हैं, जैसे here, if you take time interval of 1 second here, then the change in velocity is small. But if you take here as a 1 second time interval, then you can see that change in velocity is large. So if change in velocity in a given interval of time, जो हमने 1 सेकेंड लिया है, बढ़ गई, इसका मतलब क्या हुआ? स्लोप बढ़ गई। स्लोप बढ़ गई तो इसका मतलब क्या हुआ? एक्सेलरेशन बढ़ गया। सो बॉडी इज मूविंग विद नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, और यू कैन से बॉडी इज मूविंग विद इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन बढ़ रहा है, ठीक है। नाउ if you take three tangents, that is P1, this is P2 and this is P3, and we draw these three tangents, then we can see that the slope of tangent, अब हम डायरेक्टली लिखेंगे slope of tangent at P2, P3, this is P3, at P3 is greater than P2 is greater than P1। देख लीजिए फिगर में, इस टेंजेंट की स्लोप P3 पर सबसे ज्यादा है, P2 पर कम है और उससे कम P1 पर है। उसका रिप्रेजेंटेशन आपको इनके एंगल से मिलेगा। अगर हम ये एंगल ड्रा करें तो ये एंगल यानी θ1, ये एंगल θ2 और ये एंगल θ3। सो वी कैन से दैट if θ3 is greater than θ2 is greater than θ1, then applying tan we can write tan θ3 is greater than tan θ2 is greater than tan θ1. So A3 is greater than A2 is greater than A1. Means acceleration at point 3 is greater than acceleration at point 2 is greater than acceleration at point 1. So this graph is for the variable acceleration, or we can say velocity of the body is increasing. Velocity of the body is increasing at non-uniform rate. Velocity of the body is increasing at non-uniform rate. यानी वेलोसिटी बढ़ तो रही है, लेकिन क्या हुआ? वो इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रही है। जैसे यहाँ क्या था? अगर एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर था, यहाँ पर 7 हो जाएगा, यहाँ पर 9 हो जाएगा। मैंने ये तीनों एक नंबर लिए हैं सिर्फ इंडिकेट करने के लिए, 9 इज ग्रेटर देन 7 इज ग्रेटर देन 5। क्लियर? तो अब यहां से ये चीज क्लियर हुई। स्लोप क्या रिप्रेजेंट करता है? एक्सेलरेशन। क्यों? क्योंकि ये क्वांटिटी क्या देगी? चेंज इन वेलोसिटी। ये क्वांटिटी क्या देगा? चेंज इन टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम इज एक्सेलरेशन एट द ग्राफ। और जो ये पर्टिकुलर पॉइंट्स पर जो भी क्वांटिटी निकाली जाती है, जैसे P1, P2, P3 पर जो भी पर्टिकुलर पॉइंट्स पर निकाली जाती हैं, दीज क्वांटिटीज आर कॉल्ड इंस्टेंटेनियस क्वांटिटीज। अगर हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ लेंगे इस तरह का, तो इंस्टेंटेनियस स्पीड हो गई। अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ लेंगे इस तरह का, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो गई। अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ इस तरह का लेंगे, तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन हो गई। मीन्स
क्वांटिटी एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। पर्टिकुलर इंस्टेंट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसके करेस्पॉन्डिंग क्या होगा, एक टाइम इंटरवल नहीं होगा, इसके करेस्पॉन्डिंग एक टाइम होगा। इसी तरह से इसके करेस्पॉन्डिंग भी एक टाइम होगा और इसके करेस्पॉन्डिंग भी एक टाइम होगा। मान लीजिए टाइम इंटरवल t1 है, टाइम t2 है, टाइम t3 है, तो जो एक्सेलरेशन यहां पर निकलेगा p3 पर, वो किस टाइम पर होगा, t3 टाइम पर होगा। दैट इंडिकेट्स इट इज द इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी एट टाइम t3। नाउ एट p2 the instantaneous acceleration of the body at time interval t2। instantaneous का मतलब क्या हुआ, किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर, यानी किसी पर्टिकुलर टाइम पर जो क्वांटिटी हम निकाल रहे हैं, दैट क्वांटिटी इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस क्वांटिटी, इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो जो क्वांटिटी हम टेंजेंट से निकालते हैं, यानी फॉर फाइंडिंग द स्लोप ऑफ द टेंजेंट, दैट क्वांटिटी इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस क्वांटिटी। अगर ये कर्व इस तरह का जो स्ट्रेट लाइन होती है, वहां पर क्या केस होता है कि जो इंस्टेंटेनियस क्वांटिटी होती है वही एवरेज के बराबर होती है, क्योंकि स्लोप हर जगह कांस्टेंट होती है। नाउ दिस थिंग इज क्लियर? ओके, लेट अस कम टू नेक्स्ट ग्राफ। Now this is a fourth graph. Now if fourth graph is like this is u, this is time t, this is velocity v. Now this is origin. If this graph is like this, then it means that body has initial velocity इक्वल टू u। यानी जब हमने टाइम का मेजरमेंट किया है, टाइम का मेजरमेंट कब किया, o से, जीरो से, तो जब जीरो था टाइम तो उसकी वेलोसिटी u थी। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हमने टाइम मेजरमेंट स्टार्ट किया उसमें बॉडी u वेलोसिटी से मूव कर रही थी। उसके बाद क्या हुआ, जैसे टाइम बढ़ने लगा तो वेलोसिटी एक कांस्टेंट रेट से बढ़ने लगी, और किसी एक पर्टिकुलर टाइम पर मान लीजिए इसकी वेलोसिटी v हो जाती है। तो क्या होगा, इफ बॉडी हैज इनिशियल वेलोसिटी u and then after that its velocity is increasing at constant rate। इसका मतलब क्या होगा कि इसका मतलब है नाउ बॉडी इज moving with uniform acceleration। Now body is moving with uniform acceleration। क्यों यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हुआ, क्योंकि इसकी स्लोप कांस्टेंट। अगर इसकी स्लोप हम निकालें तो ऐसा हो जाए। ठीक है, अब देखिए नाउ अगर दूसरा ग्राफ हम इस तरह से ले लें, बाकी सब ऐसे सेम रहने दें, इसका नेचर हमने बदल दिया बस, इसको ऐसे कर दें, तो चेंज कहां है, इनिशियल वेलोसिटी u रही, आफ्टर दैट इट्स वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग। अब यहां क्या वर्ड आ जाएगा, कांस्टेंट की जगह क्या आ जाएगा, यहां पर वेरिएबल आ जाएगा, कांस्टेंट की जगह वेरिएबल रेट। वेरिएबल रेट क्यों, क्योंकि अगर यहां पर स्लोप निकालेंगे वो अलग होगी, यहां पर स्लोप निकालेंगे अलग होगी, और यहां पर स्लोप निकालेंगे अलग होगी, जैसे हमने डिटेल किया था डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। ठीक है, नाउ बॉडी इज मूविंग विथ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, क्या होगा, अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन तब होता है जब कांस्टेंट रेट से इंक्रीज होती, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन तब होता है जब ये वेरिएबल रेट से इंक्रीज कर रहा है। और एग्जैक्टली क्या हो रहा है,
acceleration of the body is increasing. Acceleration of the body is increasing at non-uniform rate. वो कैसे पता लगाया जा सकता है? By finding the slope. This is P2 and this is P3. Clear? Now come to next graph. This is, I think, fifth graph. फिफ्थ ग्राफ. अब मान लीजिए ऐसा ग्राफ है. दिस इज वेलोसिटी, दिस इज टाइम. अब वेलोसिटी v है. वेलोसिटी v डिक्रीज कर रही है. ठीक है. अब डिक्रीज करने का मतलब क्या हुआ कि ये टाइम के साथ इसकी वैल्यू कम हो रही है. अगर इसकी स्लोप निकालेंगे तो क्या होगा? स्लोप ऑफ द ग्राफ विल बी नेगेटिव. नेगेटिव स्लोप का मतलब क्या हुआ कि जो a आएगा नेगेटिव आएगा. a नेगेटिव आने का मतलब क्या हुआ? इट इज द केस ऑफ रिटार्डेशन. सो वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज डिक्रीजिंग एट कांस्टेंट रेट. और अगर यही ग्राफ ऐसे हो जाता, ऐसे, तो इसका मतलब क्या होता कि नॉन यूनिफॉर्म रेट से डिक्रीज हो रही है. जैसे अब इसके इंटरप्रिटेशन क्या है? वन, velocity is decreasing with time. Second, with a constant rate. Third, constant retardation. Fourth, negative acceleration since slope is negative. Since slope is negative. क्लियर? अगर स्लोप नेगेटिव है, नेगेटिव कैसे आई? ये एंगल है, दिस थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड tan ऑफ एंगल ग्रेटर देन 90 to 180 इज नेगेटिव. इसका मतलब क्या है? वेलोसिटी कॉन्स्टेंटली डिक्रीज हो रही है. क्लियर? अब नेक्स्ट ग्राफ पे आते हैं. ठीक है, या नेक्स्ट ग्राफ रहने देते हैं. पहले हम एरिया बाउंडेड और वेलोसिटी टाइम ग्राफ देखते हैं. नाउ एरिया इन वीटी ग्राफ, यानी वीटी ग्राफ का एरिया क्या देता है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया क्या देता है? जैसे हमने एक वीटी ग्राफ बनाया. दिस इज वेलोसिटी, दिस इज टाइम. सपोज ये ग्राफ ऐसा है, यहाँ पर ओरिजिन है, ये वेलोसिटी v1 है, ये 0 है, ये टाइम t1 है. तो अगर हम इसकी एरिया निकालें, यानी वेलोसिटी टाइम ग्राफ की एरिया, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ की एरिया क्या होगी? ये एरिया होगी, एरिया ऑफ द शेडेड रीजन. दिस पॉइंट इज A, दिस पॉइंट इज B. ये शेडेड रीजन की एरिया होगी. क्यों होगी? क्योंकि यही रीजन कंटेन होता है वेलोसिटी और टाइम एक्सिस के उसमें. This region is contained in velocity and time axis. Now, area of figure is equal to figure OAB. क्या हो जाएगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. बेस क्या है? हाफ इंटू बेस OB इंटू हाइट
BA, or we can say half into OB क्या है T1 and BA क्या है V1. Now we can say this area A, इसको लिख सकते हैं A is equal to 1/2 V1 into T1. और velocity into time क्या देगा? What does the velocity into time gives? Velocity into time gives displacement of the body. That is, अब अगर आपको डिस्प्लेसमेंट, मान लीजिए हम वेलोसिटी लिखते हैं, तो वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, या डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू व्हाट? वेलोसिटी इनटू टाइम. अब क्यों इसकी एरिया, आप कहोगे एरिया सर मीटर स्क्वायर में आएगी, क्यों इसकी एरिया की यूनिट, अब इसकी यूनिट क्या है जो एरिया है? मीटर्स आई. इसकी यूनिट आई मीटर्स. कैसे मीटर में आई? वेलोसिटी की यूनिट क्या होगी? v1 मीटर पर सेकेंड, ठीक, इनटू टाइम t1 सेकेंड्स. तो सेकेंड कैंसिल हो गया, क्या हो गया? v1 इंटू t1 मीटर्स. यूनिट क्या बची यहां पे? मीटर. तो फिजिक्स में बेटा, मैथ्स में एरिया जो होता है दैट गिव्स द यूनिट ऑफ मीटर स्क्वायर, लेकिन किसी भी ग्राफ की एरिया क्या होगी, कि उसकी यूनिट क्या होगी, दैट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द क्वांटिटी प्लॉटेड ऑन वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस. नेचर ऑफ द क्वांटिटी प्लॉटेड ऑन वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस. जैसे यहां वेलोसिटी प्लॉटेड थी, यहां टाइम प्लॉटेड था, तो वेलोसिटी इंटू टाइम क्या होगा? हम किसी भी फार्मूले से, मान लीजिए रेक्टेंगल होता तो भी लेंथ इंटू ब्रेड्थ लिखते, वेलोसिटी इंटू टाइम लिखते, और वेलोसिटी इंटू टाइम क्या होता? डिस्प्लेसमेंट. और डिस्प्लेसमेंट की एरिया क्या होती? मीटर. यूनिट क्या होती? मीटर्स. अब यहां पर हमने इसकी यूनिट लेके भी आपको शो किया कि वेलोसिटी की यूनिट क्या है? मीटर पर सेकेंड. टाइम की यूनिट क्या है? सेकेंड कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? मीटर्स. So area bounded by the velocity time graph gives the displacement. Similarly, we can say that area bounded by speed time graph gives distance. Gives distance. Clear? Now area bounded by speed time graph gives distance. अगर यहाँ पर हमने स्पीड प्लॉट किया, यहाँ पे टाइम प्लॉट किया, यहाँ क्या आ जाएगा? स्पीड इंटू टाइम आ जाएगा. स्पीड इंटू टाइम क्या देगा? डिस्टेंस. Clear? So these were few types of velocity time graphs. The area bounded by the velocity time graph. The area bounded by velocity time graph gives displacement, and area bounded by speed time graph gives distance. Okay. Now come to the last type of the graph, that is acceleration time graph. And there are three basic type of graphs. This is acceleration time graph. Acceleration time graph. Now in acceleration time graph, this is graph 1, A, this is T, this coincides with the time axis, so A is equal to 0. Second graph, A, T, this one constant. Third one, A, T, straight line. Here acceleration
acceleration is increasing at constant rate. Acceleration is increasing at constant rate. Acceleration is increasing at constant rate. Now, fourth type of graph, A, T, its slope is like this. That acceleration is increasing at variable rate. Give me one marker. Now here in this graph, acceleration is 0. It means what? Velocity is constant. Velocity is constant. Here in this graph. So velocity becomes constant. Velocity is constant. Acceleration is 0. यहाँ acceleration 0 लाइन पे है. यहाँ पे क्या हुआ? Acceleration constant है. Velocity increasing at constant rate. Now here in third, acceleration increasing at constant rate. And here in this, acceleration increasing at variable rate. ठीक है, तो ये कुछ एक ग्राफ्स हुई एक्सेलेरेशन के. ठीक. नाउ देन वी कम टू द एरिया बाउंडेड बाय एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ. एरिया बाउंडेड बाय एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ. Area bounded by acceleration time graph. Area bounded by acceleration time graph. अब acceleration time graph का जो एरिया होगा, जैसे मान लीजिए हमने ये केस लिया था, दिस इज A and this is T. It is a straight line. This is O. This is A. We have just drawn this triangle. Let this acceleration is A1 and this time is T1. OA, this point is B. Now, area of AT graph is equal to area of triangle OAB, or we can say area is half into base into height, and A is equal to what? Half into base is OB into height is BA. That is, sorry, here half into OB is T1 and BA is A1. So A is equal to what? Half into A1 T1. अब हम देखेंगे एक्सेलेरेशन इनटू टाइम क्या देगा. नाउ वी नो दैट एक्सेलेरेशन इज इक्वल टू डेल्टा V by डेल्टा T. So we can say delta V is equal to A delta T. भाई अगर यहाँ टाइम 0 ले लिया, यहाँ टाइम t ले लिया, तो डेल्टा टी क्या होगा? दिस टाइम टू. अब a इंटू डेल्टा टी इज व्हाट? चेंज इन वेलोसिटी. सो एरिया, अभी यूनिट वाइज भी देख लें. अगर यूनिट वाइज देख लें
तो ये एक्सीलरेशन की यूनिट क्या होगी, यही मैं लिख देता हूं 1/2 A1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इनटू टाइम t1 सेकेंड्स। तो 1 सेकेंड कैंसिल हो जाता है, होगा क्या 1/2 A1 t1 मीटर पर सेकेंड, और मीटर पर सेकेंड किसकी यूनिट है, वेलोसिटी। सो दिस गिव्स द वेलोसिटी, दैट इज area of acceleration time graph gives, that is area of AT graph gives change in velocity. So area of acceleration time graph gives change in velocity. Okay. Now that's all for today in this module. Now I will provide an assignment to you depending upon the nature of the graph, and in my third module of the graphical representation I will do the derivations of equations of motion by graphical method, and I will upload that video within 2 or 3 days. But before that, try to understand the concept of representation of the graph and try to see and search the various questions related with the graph in different places. And now it is time to search online. You can search for the questions for the motion in one dimension related to the graph, and you can analyze your approach, you can analyze your wisdom to find the correct solution of the graph. So thanks, have a good day, meeting in the next module.